the topics are large, there is great quantum, so what we do? So slowly we will move. So should I start? My name is Rajiv Garg, and the topic is analysis of bridges. You know, analysis is core aspect of design because it takes based on many inputs, design forces, and it's slightly complicated. Look at this slide. I want to show that bridges have a different concept from buildings, power plants, and other structures because of many reasons. Although the foundation remains same, superstructure is there to carry live load and any other accidental or environmental load like temperature, wind, etc. So as you see here, it is the foundation. There is a foundation which sometimes is more complicated than buildings. There is a pier and there is a superstructure. So you know very well, but what it comes out, the structural form is quite different from buildings. There is aspect ratio, length and dimension are different, and there is some moving load, which is typically is not in buildings. So what exactly we do in structural analysis is that it is a process to predict the response and behavior by using physical laws and mathematical treatment. Response means some input is given and that how it gives reactions. That's the response. And response includes internal forces, stresses, deformation, etc. So when we do structural analysis, the first part is modeling. So once you see this first structure, first image, it is a continuous material. It may have a different shape, and note that it has three different components which we have said: the superstructure, substructure, foundation, and surrounding foundation soil. So if you look at this part is one component, 2 and 3. They can be simplified in a process that which looks like mass spring system. So if you think that there is a mass at the top, the superstructure one with the center of gravity, some mass and stiffness, then some part of pier, some part of pier. So what we say, a continuous structure is divided into several components, and each one is connected through mass and springs. Or look at another image on bottom left. There is a large part inside foundation which is surrounded by soil, and soil also gives some reaction or stiffness in form of soil springs. So the net deflection or deformation pattern is somewhat different what we think, because many of its dimensions are inside the soil. So soil also plays important role while modeling of structure. So this is the simple one, same one. So the first step is discretization, means there is a shape and size of structure, there is a material and its characteristic like stiffness. So steel has different characteristics, concrete has different characteristics, bricks and stone have different characteristics. So the discretization is the representation of the physical system for realizing the mathematical model, elements, their connections and interactions to achieve the expected behavior. What we expect, because mathematical modeling is somewhat hidden. So physically what we observe, that should be able to simulate. So what are the parameters of interest? Means say he want to design the structure, तो डिज़ाइन में उसे क्या चाहिए कि उसका क्या इंटरेस्ट है. तो देखिए सबसे पहले है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, लिमिट स्टेट याद कीजिए, और उसमें लिमिट स्टेट्स मीन्स देयर इज ए लिमिट, एक हर चीज़ की लिमिट है, स्ट्रेस और स्ट्रेन. स्ट्रेन और स्ट्रेस में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ क्या है कि सारी चीज़ें स्ट्रेन से शुरू हुई हैं, लेकिन हम क्योंकि स्ट्रेस जल्दी समझते हैं तो वो स्ट्रेस में कर दी जाती है. जैसे 30 मेगापास्कल इज ए कंक्रीट स्ट्रेंथ, तो उसमें एक बिहेवियर और आता है इलास्टिक या प्लास्टिक. फिर बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शन,
ये एक प्राइमरी फोर्सेस है जो डिज़ाइनर को चाहिए। फिर टॉर्शनल इफेक्ट, वार्पिंग बॉक्स में हो सकती है, डायनेमिक एक्शन में कुछ और है, अर्थक्वेक आया तो कुछ और होगा। फिर एक सर्विसेबिलिटी, आपका स्ट्रक्चर कितना भी मजबूत हो, कितना भी लोड ले, लेकिन यदि वो हिलता है, उसका वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो लोग डर जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सर्विसेबिलिटी। तो उसमें है आपका डिफ्लेक्शन है, वाइब्रेशन है, और फैटिग उसी का पार्ट है। स्टील में फैटिग ज़्यादा है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो आप अच्छी तरह समझते हैं। और ये ग्राफ, ये स्केच आपने पहले भी देखा है, खास तौर से ये सॉइल वाले भी। उसमें क्या है, यदि कोई बॉडी है और स्टेबल है, उसमें बहुत से रिएक्शन फोर्स है या रखने के लिए जगह है जैसे सपोर्ट, ऊपर से लोड आ रहा है, तो इस पूरे को स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं लोग, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मान के चलिए। मान लीजिए एक छोटा सा पीस आपने लिया है और ये एक छोटा सा एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट को देखें यदि हम, तो उसके चारों तरफ खास तौर से दो फोर्स लगे हैं। एक ऑपोजिट ऑफ प्लेन से, यदि हम किसी एक प्लेन को ले लें, से राइट एक्सट्रीम कॉर्नर प्लेट लें, तो उसके एक मटेरियल प्लेट से बाहर फोर्स लग रहा है और एक मटेरियल पे अपना फोर्स लग रहा है, वो शियर है, और जो बाहर जा रहा है वो नॉर्मल है। तो इन सबके कंबाइनेशन से आप समझिए किसी भी बॉडी में उसके इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होती है, और इन्हीं की एनालिसिस हम करनी पड़ती है। पहले उसको इंटरनल निकालते हैं, फिर पूरे बॉडी के लिए उसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आइए एक छोटा सा केस देखते हैं कि ये बहुत से मेथड हैं, इनमें हमें अब जाने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनाइट एलिमेंट मेथड। फाइनाइट स्टेप भी होता है, मल्टी गर्डर सिस्टम हमारा सबसे पॉपुलर है। तो आइए मल्टी गर्डर को देखते हैं। मल्टी गर्डर में क्या है कि यदि आप इस ब्रिज को देखें जिसमें 3 गर्डर हैं और एक डेक है, तो हमारा क्या इंटरेस्ट है, यदि सिंपली सपोर्ट बाउंड्री कंडीशन है तो उसके एंड्स पे कितनी रिएक्शन आ रही है वो हमें चाहिए, उसके सेंटर में कितना बेंडिंग मोमेंट है और शियर कई जगह पे सपोर्ट और सेंटर में कितनी है वो चाहिए। तो हम कोई भी गर्डर का बीम से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस ब्रिज स्ट्रक्चर में कि आपका व्हीकल सेंटर में जा रहा है तो कुछ और फोर्स आएंगे, क्योंकि सारा लोड सेंट्रल बीम ले लेगी। यदि ये एसिमेट्रिक हो गया तो यहाँ इस पे जाएगा। तो आखिरकार हम किसके लिए डिज़ाइन करें? तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब मूविंग लोड है, आपका ट्रक है या ट्रेन है, कुछ भी है, तो कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स में, डिफरेंट गर्डर्स में, यही हमारा इंटरेस्ट है। तो बेसिकली यदि हम रिएक्शन निकालते हैं, तो कॉर्बन ने बोला कि यदि आप रिएक्शन निकालते हैं तो P फोर्स है और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक गर्डर का है। पहले इसकी एक रेशो लीजिए, फिर इसी के साथ जो लोड आपका सेंटर में, साइड में, कहीं भी हो सकता है, तो आप उसकी एसेंट्रिसिटी सेंटर से ले लीजिए और डिफरेंट पैरामीटर लगा के आप रिएक्शन निकाल सकते हैं। सीधे शब्दों में आपका ब्रिज पे जो लोड कहीं भी जा रहा है तो डिफरेंट कंबाइनेशन से लेके आप कोशिश कीजिए और गर्डर के एंड पे रिएक्शन निकाल लीजिए। ये उसका सिंप्लीफाइड मेथड है। और जब रिएक्शन निकल गई तो बेंडिंग मोमेंट, शियर आप मैक्सिमम कंडीशन पे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होगा? जब ट्रक सेंटर में होगा बीम के। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपना शियर बेंडिंग निकाल लीजिए। तो आइए एक बार इसे करके देखते हैं। ये एक एक्चुअल केस स्टडी लेते हैं, तो जिसमें क्या किया है, 7.9 मीटर 7.5 मीटर इसके कैरिजवे है और 3 गर्डर हैं। 3 गर्डर की डायमेंशन सभी इसमें दी हैं। और बाद में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन लॉन्गिट्यूडनल गर्डर हैं ये अक्रॉस द स्पैन, इनको कनेक्ट करने के लिए ट्रांसवर्स बीम दी गई है ताकि टॉर्शन ना हो, टॉर्शन उसमें बियर हो जाए। तो ये बेसिकली है क्रॉस बीम से 3.62 मीटर पे और इफेक्टिव लेंथ है हमारी 14.5 मीटर, M25 कंक्रीट है, Fe 415 है। तो इस तरह का एक कंबाइनेशन आ सकता है। WW हमारे से ट्रक के एक्सल लोड है और नीचे ये 3 एरो आपके गर्डर की रिएक्शन शो कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं जैसे कि ये यदि एसिमेट्रिक है
लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ हुआ है W, W पूरा, देयर आर 4 W, सो 4 एक्सल लोड 4 W आ गए, और ये थोड़ा शिफ्ट हुआ है इसेंट्रिक एसिमेट्रिक लेफ्ट साइड में। तो हमें उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा इस पूरे लोड की इसेंट्रिसिटी निकालनी है और दूसरी प्रॉपर्टी निकालनी है। कैसे, जरा देखिए नीचे का ये डायग्राम देखिए, पहला गर्डर, दूसरा गर्डर, एनड गर्डर, इन सब की अपनी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कंबाइंड, और जो आपका लोड लगा है ये पी लोड इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना दूर है, वो स्मॉल ई है इसेंट्रिसिटी। अब आप एक और चीज़ देखिए कि जिस गर्डर को आप एनालाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इस ith गर्डर को एनालाइज कर रहे हैं, तो इस सेंटर से कितना उसका डिस्टेंस है, वो दूसरी इसेंट्रिसिटी है। और प्लेसिंग ऑफ गर्डर, गर्डर की अपनी इसेंट्रिसिटी सेंटर से DI है, ith गर्डर, सो एन है DN हो जाएगा, तो ये nth गर्डर की इससे डिस्टेंस है। तो दीज आर सिंपल ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब आप इसको फॉर्मूले में रखिए, P आपको पता है, P मीन्स 4W हियर, I moment of inertia of single girder, summation of all girders stiffness. So it is basically the ratio of one girder which is of interest, say nth girder or ith girder. In bracket 1 plus sigma EI is summation of all girders moment of inertia, then with eccentricity, और स्मॉल ई स्मॉल डी हमने लोड से कितनी सेंट्रिसिटी है, और DI गर्डर की अपनी सेंट्रिसिटी। तो हर ith गर्डर के लिए, चाहे वो पहला गर्डर है दूसरा है, सबके लिए हम रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो यदि हमारा 4W है टोटल लोड और N 3 गर्डर हैं, इसेंट्रिसिटी हमने जैसे निकाली CG की लोड से यदि आप ये इसको ले और ये सेंटर में लें तो 700 mm के करीब आता है, और डिस्टेंस ऑफ ith गर्डर वो हमें हर बार नया लेना है। से पहला गर्डर लेते हैं, पहले गर्डर को लीजिए, तो ये इस सेंटर से कितना दूर है, 2.5 मीटर। दूसरा वाला इसी पे है, पिछली फिगर देखिए, दूसरे वाले की CG और ज्योमेट्रिक CG दोनों मैच कर रही हैं। तो इसलिए जो D2 है दूसरे गर्डर की इसेंट्रिसिटी अपने आप में 0 है, तीसरे गर्डर की भी 2.5 मीटर है। इस फार्मूले में रखिए, तो क्या निकला, पहली रिएक्शन आपके पास आई 2.45 W, जो लोड 4W था एक्सल लोड, वो इस गर्डर पे 2.45 टाइम्स W आया। यदि हम 3 गर्डर में इक्वली डिवाइड करते तो 4W/3 आता, 1.33 W, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा है। और यही कितना ज़्यादा है, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा एनालिसिस के लिए लोडिंग चाहिए थी। कितना, कैसे सारा एक्सल फोर्स सभी गर्डर में लोड शेयरिंग हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अब आप दूसरे गर्डर को देखिए, उसकी रिएक्शन कितनी आती है, 0.21 W, क्योंकि वो एसेंट्रिक लोडिंग है। तो हमने देखा कि एक गर्डर के रिएक्शन 2.45 W है, दूसरे की 1.33 W है, चौथे की 0.21 W है। यदि हम 1.33 इक्वल के हिसाब से करते तो हमारी मिस्टेक होती। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो दिस इज शेयरिंग पैटर्न ऑफ लोड अमंग गर्डर्स which we can get by simple means based on plotting of loads on the span such as symmetric and symmetric. The maximum value of load is to be computed for the design purpose. कोई भी आई गर्डर का कम्बाइनेशन हम इजीली इस मेथड से कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, डेड लोड चाहिए, लोडिंग पोजीशन चाहिए, बहुत से लोडिंग की कम्बाइनेशन कैसे होगी वो देखनी है। तो वो आपको अपने आप सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक से बनानी होगी। और भी मेथड है, हेनरी जेगर, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे आपको मिल जाएंगे। कंप्लेक्सिटी विल इंक्रीज मोर यू लुक एट सेट कम्प्लेक्स मेथड्स। तो अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, जरा बताइए व्हाट आर द स्क्यूड ब्रिजेस। अभी तो हमने सिंपल प्लेट का, सिंपल डेक का ब्रिज को देखा, तो स्क्यूड क्या होता है और स्क्यूड में क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे हैंडल करना है। डिस्कस इन ब्रीफ वर्किंग एंड टॉर्शनल इफेक्ट्स इन ब्रिजेस। टॉर्शनल का क्या है, अभी हमने देखा लॉन्गिटोनल गर्डर को कनेक्ट किया ट्रांसफर गर्डर से ताकि टॉर्शनल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। तीसरा पॉइंट है चूज ए कॉमन टाइप ऑफ स्लैब और गर्डर ब्रिज एंड कैरी आउट प्रिलिमिनरी डिजाइन। आप एक बार अपनी डायमेंशन लीजिए, कुछ भी नहीं तो इसी को रिपीट कर दीजिए और करके देखिए क्या आता है। द लोकेशन, टाइप ऑफ सॉयल, ज्योमेट्री, हाइड्रोलिक पैरामीटर, मटेरियल लोडिंग,
may be chosen and indicated using relevant IRC and IS codes. बहुत सिंपल करके देखिए, 1 या 2 पेज में होना चाहिए। इससे क्या होगा? देखिए, हम सब बेसिक लिटरेचर पढ़ के आगे बढ़ते हैं और हमारे गाइडेंस से हम कोई अमेरिकन कोड इमीडिएटली नहीं ले रहे हैं, हमें तो इंडियन कोड लेने हैं, चाहे IRC है या BIS है। और अब BIS भी बहुत अच्छे कोड दे रहा है और मुझे अभी मालूम है उन्होंने रोड के लिए डिजास्टर इन रोड्स आल्सो उन पे भी काम करना शुरू कर दिया है। IRC तो करता ही है। एक और पहले मेथड आता था ग्रिलेज एनालिसिस। ग्रिलेज एनालिसिस इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे हमें फाइनाइट एलिमेंट समझने में मदद मिलती है। हर चीज़ का एक बेसिक फॉर्मूला है फोर्स, हमें फोर्स ही तो निकालना है, चाहे बेंडिंग हो, शेयर हो। वो है स्टिफनेस मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब स्टिफनेस और डिस्प्लेसमेंट को याद करने का सबसे आसान तरीका है स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को यदि आपने लटका दिया, जैसे ही लोड देंगे वो डिफ्लेक्ट होगी। कितने लोड से कितना डिफ्लेक्शन हो, बस यही नोट करना है। सो स्टिफनेस इज रिवर्स ऑफ दिस इक्वेशन, फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब यूनिट डिस्प्लेसमेंट में कितना फोर्स चाहिए वो इसकी स्टिफनेस है। स्टिफनेस वर्ड एक की वर्ड है जो हर जगह यूज होगा। तो ये भी एक ग्रिलेज है। ग्रिलेज का मतलब जैसे मेन एलिमेंट अपने सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, जैसे एक जाल बिछा दिया, एक जाल करते हैं ना। तो अब आप देखिए इसमें 4 गर्डर हैं और उसके ऊपर एक डेक है। चारों गर्डर क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है, हमने उसे ज्यों का त्यों लेना है, लेकिन उसे लाइन एलिमेंट की तरह ले लिया और उनको कनेक्टिंग हमारे ट्रांसवर्स बीम्स हैं। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए और मॉडलिंग के लिए हमने क्या किया, हर पॉइंट को एक नाम दिया, उसे हम बोलेंगे नोड। 1 से ये राइट वाला मेंबर देखिए गर्डर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 28 नोड हैं और ये 2 एजेस पे टिका है, दैट इज सपोर्ट। सो हमारे यदि कोई कहता है सपोर्ट कंडीशन पे क्या नोड है बताएंगे, तो आप सिंपली बताएंगे से मेरी तरफ वाला जो फर्स्ट वन है 1 नोड, 8 नोड, 15 नोड, 22 नोड। फादर एंड पे 7, 14, 21, 28 नोट्स हैं। इससे क्या इसमें क्या चेंज हुआ, जो डेक जो सुपरस्ट्रक्चर ब्रिज डेक 2 डायमेंशनल था, थिकनेस कम है, तो वो हमने लाइनों में डिवाइड कर दिया। अब लाइनों से क्या खासियत है, लाइन की सारी प्रॉपर्टी आसान है, स्टिफनेस निकालना आसान है और डिफ्लेक्शन क्या निकालना, हम हर नोड पे डिफ्लेक्शन निकाल के अपना काम चला लेंगे। डिफ्लेक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि डिफ्लेक्शन स्टिफनेस में मल्टीप्लाई करके फोर्स देता है। तो आइए इस मेथड को देखते हैं। इसमें क्या चाहिए, 5 स्टेप हैं। आइडियलाइजेशन ऑफ डेक एंड गर्डर, इवैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट इलास्टिक इनर्शिया और स्टिफनेस ऑफ ईच ऑफ द मेंबर कनेक्टेड एट नोड। हम हर प्रॉपर्टी नोड पे ले लेंगे। एप्लीकेशन एंड ट्रांसफर लोड्स टू वेरियस नोड्स ऑफ ग्रिलेज, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स रिस्पॉन्स ऑफ डिजाइन एनवलप, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसके लिए समझना जरूरी है, ये थोड़ा मैथमेटिकल है लेकिन ये है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये इस स्केच को देखिए, इस स्केच में क्या है कि एक बार है, उस बार के एक एंड में नोड 1 है, दूसरे में नोड 2 है। इस नोड पे आइडियली 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, एक लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट U1, एक ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट U2, एक वर्टिकल U3। एक पॉइंट पे 3 डायमेंशन है, तो तीनों के अपने अपने डिस्प्लेसमेंट है। उसी के साथ हमारा थंब रूल है रोटेशन, ये रोटेशन शो करता है। तो इस पॉइंट पे जो इस डायरेक्शन में U1 डायरेक्शन में रोटेशन है वो U4 दिया हमने नाम, ऐसे U2 डायरेक्शन में U5 रोटेशन और U6। तो 3 डिस्प्लेसमेंट और 3 रोटेशन, ये हर नोड की कैरेक्टरिस्टिक है। ये मैक्सिमम है जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करता है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे एंड पे है। अब कोई कहता है नहीं जी मैं आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट काउंट नहीं करता, मैंने बियरिंग ऐसी लगा दी वो हिलेगा नहीं, तो रोकेगा, तो वो उसको फोर्स चाहिए। जहाँ भी आपने डिस्प्लेसमेंट रोका, कहीं तो आपको सपोर्ट देनी ही पड़ेगी, वही रिएक्शन शुरू हो जाएगी।
जो आपने एंड जो डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्री कर दी, वहाँ डिस्प्लेसमेंट अपने आप होगा और हमें नापने की जरूरत नहीं, मतलब है वो स्टिफनेस नहीं देगा। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में अलग मैटर करती हैं और ये हेल्प करेगा जब आप बियरिंग डिज़ाइन करेंगे। तो कुछ बड़ी बड़ी बियरिंग के लिए हम ये देखते हैं एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट अलाउ करेंगे, वर्टिकल में तो मान के चलते हैं कोई खास डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो जब आप एक नोड को समझ गए, दूसरे नोड को समझ गए और सारी कैलकुलेशंस हम नोड पे ले आते हैं। अब क्या करो, इस नोड से इस नोड को जोड़ दो और जो प्रॉपर्टी इस पूरे स्ट्रक्चर की है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थिकनेस, डायमेंशन, स्टील, मटेरियल जो भी है, सब इसको असाइन कर दो। तो हमारी प्रॉब्लम क्या रह गई, नोड को हैंडल करो, दो नोड को कनेक्ट कर दो जो भी जुड़े हैं और उस प्रॉपर्टी को लोकली बना दो, उस लोकली को फिर ग्लोबली ले जाके अपना ये कर दो कि आखिरकार। तो हम यहाँ पर थे कुछ, तो ग्रिलेज वाले क्या बोलते हैं कि हम हर नोड पे 6 डायमेंशन के बजाय 3 ही डायमेंशन लेंगे। वो कौन सी है, U1, U2, U3, U4, U5, U6 में से 3 उसने हटा दी। यदि हमारे n नोड हैं तो कितनी फ्रीडम हो गई, 3 टाइम्स नोड। अब आपने डेक की स्टिफनेस कैसे लेंगे, इसके लिए क्या किया उसने, ये लाइन एलिमेंट बना दिए, मतलब इस पॉइंट को इससे जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, ऐसे बना दिया जैसे ये बार से जुड़ा है। और इस प्लेट की, ब्रिज डेक प्लेट ही है, प्लेट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हर बार में इक्वलेंट बना दी। वो कितनी इक्वलेंट है वो ये बता रहा है। तो एक बार की मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लेंथ इन वाई डायरेक्शन ऑफ द डेक एलिमेंट और उसकी एक्स डायरेक्शन में एलिमेंट, इन सबकी रेशो है और थिकनेस। तो एक सिंपल फॉर्मूले से जो 2D ब्रिज डेक था उसको हमने लाइन एलिमेंट बना दिया और उन लाइन एलिमेंट कैसे बनाया है वो हर नोड से जोड़ दिया, 4 नोड से जोड़ दिया जैसे इसने दिखाया है, A, B, BC, CD, DA। जरूरत पड़ी तो क्रॉस भी कर देते हैं, तो उन क्रॉस का भी उसने फॉर्मूला दिया है। और टॉर्शनल स्टिफनेस के लिए दूसरी J प्रॉपर्टी भी उसने दे दी। एक बार देखेंगे तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्टीमेटली क्या किया, मतलब इस मेथड से हम एक बॉक्स को भी इसी तरह से कर सकते हैं और गर्डर को, किसी भी स्ट्रक्चर को। दूसरी एक और चीज़ है, अब मैं आपको स्टिफनेस निकालना याद कराता हूँ, आपने पढ़ी है। उसमें क्या होता है कि आप इस मेंबर को देखिए, इस मेंबर में ये एंड यदि आपने फिक्स कर दिया और एक एंड को यूनिटी खिसकाया विद इन XY प्लेन, यूनिटी। तो जब हम ऐसा करते हैं यूनिटी, तो ये क्या करता है, दोनों एंड्स पे एक्स्ट्रा मोमेंट क्रिएट कर देता है। ये आप देखें, डबल एरो मीन्स मोमेंट और रोटेशन। सो रोटेशन से मोमेंट क्रिएट हुआ विच इज 6CI डेल्टा L स्क्वायर यूनिटी। यदि हम यूनिटी डिस्प्लेस करते हैं तो ये दोनों एंड्स पे 6CI डेल्टा स्क्वायर मोमेंट करेगा, लेकिन क्योंकि ये तो फ्री एंड है इसलिए मोमेंट यहाँ, अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और दूसरे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है और 2 रिएक्शन और 2 मोमेंट, 2 आएंगे। तो रिएक्शन आती है 12EI/L स्क्वायर और 6CI डेल्टा और L स्क्वायर होता है। तो डेल्टा क्योंकि यहाँ यूनिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो इतना मोमेंट और इतना शेयर आ गया। और यदि हम इसे रोटेट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं यूनिटी, तो ये GJ/L, L लेंथ है और दूसरे एंड पे GJ/L, ये प्लस माइनस इसलिए क्योंकि उनकी डायरेक्शन चेंज है। इस यूनिटी की वजह से यदि टॉर्शन है तो कितना ट्विस्टिंग मोमेंट क्रिएट हुआ, ये सब हमें पता लगाना है। तीसरी डायमेंशन है कि जब आप देखिए, आपने यूनिटी शिफ्ट किया है इस फिगर में, यहाँ पे पॉइंट वही रहेगा, पॉइंट चेंज नहीं हुए, बल्कि इसे रोटेट कर दिया, इस एंड को यूनिटी रोटेट कर दिया, थीटा जिसे बोलते हैं, डिफ्लेक्ट से वर्टिकल डिफ्लेक्शन दे दिया वो यूनिटी। तो ये मोमेंट कितना कर रहेगा, 6CI/L स्क्वायर दोनों एंड पे और रिएक्शन 2EI/L। सिंपल ज्योमेट्री से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये अब आपको एक चीज़ बता रहा है कि यदि हम
किसी एलिमेंट के उस पर यूनिटी डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो इसमें एक एंड पे एक मोमेंट और दूसरी रिएक्शन, फिर इस ट्विस्टिंग में एक मोमेंट और रिएक्शन, तीसरे कंडीशन में एक मोमेंट और रिएक्शन, ये कंबाइनेशन हमें इस एलिमेंट के लिए पता लग जाता है। तो हमारी कितनी, एक एंड पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। एक इस डायरेक्शन में, एक ट्विस्टिंग और एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन लाइक थीटा, फ्लेक्सर जिसे भी हम बोलते हैं। लोकल कोऑर्डिनेट, हम इसे, यदि हम सिर्फ एक एलिमेंट को ले रहे हैं तो इसकी लोकल कोऑर्डिनेट में हमने डिस्कस किया, एक्स वाई डायरेक्शन में एट द एंड देयर आर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्टिफनेस मैट्रिक्स लुक लाइक 6/6। तो एक मैट्रिक्स बनेगी 3 इस एंड की, 3 दूसरे एंड की। यदि हमारे दो एंड है जे एंड के, तो 3 जे पे 3 के पे, और यदि हम एक कंबाइंड मैट्रिक्स लें, मैट्रिक्स मतलब यूनिटी डिस्प्लेसमेंट में कितना फोर्स जनरेट हुआ, तो ये 6/6 मैट्रिक्स बनेगी। यही हमें हर एलिमेंट की निकालनी है, और हमें मालूम है उसमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए। ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लेंथ स्पैन। सो इन 3 प्रॉपर्टी से हम ये सारा उसकी कैरेक्टरिस्टिक बीम की निकाल सकते हैं, एक मैट्रिक्स बन जाती है। तो अब क्या समस्या रह गई, हमने हर एलिमेंट को, जैसे आपको याद है ग्रिलेज में हमने ढेर सारे नोड बनाए 28, और उन सब 28 को कनेक्ट करते हुए एलिमेंट बनाए। तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमें लोकली पता लग गई, लेकिन वो एलिमेंट यदि हम ओवरऑल पिक्चर में देखें तो किसी ओरिएंटेशन पे है, कोई 90 डिग्री पे है मेंबर, कोई पैरेलल है एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के। तो मान लीजिए आपको पूरा ब्रिज की एक्सिस एक्स वाई जेड ऐसे डिफाइन है, लेकिन लोकल मेंबर किसी एंगल पे है। तो इस, यदि हमने लोकल मेंबर की प्रॉपर्टी निकाल ली और हमें इसमें ट्रांसलेट करनी है ग्लोबल वाले में, तो कैसे करने हैं? उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो लैम्डा कहलाती है, और सिंपल कोस गामा साइन गामा की टर्म्स में है। गामा मीन्स एंगल, ओरिएंटेशन फ्रॉम ए सम रेफरेंस एक्सिस। तो हमारी जो 6/6 मैट्रिक्स दिखेगी किसी एलिमेंट की, वो इस तरह से दिखेगी। इसमें क्या चाहिए? सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो एक एलिमेंट की ओरिएंटेशन और प्रॉपर्टी से हम ये सब हर एलिमेंट की मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। क्योंकि ये मैनुअली करना आसान नहीं है, हजारों एलिमेंट हो सकते हैं, तो इसलिए हम कंप्यूटर की मदद ले सकते हैं। आपने प्रॉपर्टी निकाल ली, लेकिन लोड भी हमें नोड पे लगाना है। तो लोड के लिए क्या किया हमने? लोड के लिए क्या किया कि जो भी लोड लगाए उसको हर नोड पे डिवाइड कर दिया। से यदि सेंटर में है कि 2 नोड के, तो आधा एक तरफ ले गए, आधा दूसरी तरफ। यदि वो यूडीएल है तो इक्विवेलेंट नोड ले लिया। इस तरह से बेसिकली सारा लोड जो हमें पता है हमने नोड पे लगा दिया। आइए इस एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं। 28 नोड, 28 ये 3 वाले में हमारा कितना है? 21 नोड है, और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट है एक, तो इन नोड को कनेक्ट करते हुए ये हमने एलिमेंट बनाए। सो एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, ये खाली है। जब क्रॉस बीम आती है तो इन दोनों को कनेक्ट करते हुए क्रॉस बीम है। ये भी दूसरी गर्डर है, ये भी तीसरा गर्डर है। और जो यहाँ डैक था, उसको डैक को भी हमने इक्विवेलेंट लोडिंग हर नोड पे लगा दी, इस नोड पे, इस नोड पे, इस नोड पे। तो इस तरह से अब हमारा ये ग्रिलेज बन गया। ग्रिलेज में ये होलो है और ये मटेरियल, ये बीम्स है। स्टिफनेस हमने निकाल ली लोकली। अब मान लीजिए आपके पास, आपने इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी निकाल ली, और जबकि ग्लोबल एक्स ये है, ग्लोबल एक्स ये है लॉन्गिट्यूडनल, और वाई ये है, और जेड ये है, वाई और जेड। तो इस मेंबर की ओरिएंटेशन हमें इस एक्स वाई जेड में पता है, क्योंकि हमें उसके कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये पता है, ज्योमेट्री तो सारी पता है। तो उसकी जो कोऑर्डिनेट थीटा है हमें पता है, उस थीटा के हिसाब से हमने ग्लोबल ट्रांसलेट करना है, और ऐसी लोड को लगा दिया। तो अब एक बार इस समरी को पढ़िए।
तीन इसमें लॉन्गिट्यूडनल गर्डर हैं, 1 2 3, और ट्रांसफर गर्डर हैं 1 2 3 4 5 6 7, और मॉडुलस इलास्टिसिटी और जी मॉडुलस वैल्यू दी है। तो और रिएक्शन निकालनी है हमें 1 2 3, और इन क्योंकि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। तो कैसे किया इन्होंने किया, देखो नंबर ऑफ नोड्स समरी है, नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एलिमेंट, नोड 21 हैं और 32 इसमें एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से 3 ग्रुप किए हुए हैं, इसके नोडल कोऑर्डिनेट वगैरह XYZ सबकी दी है। तो अल्टीमेटली क्या निकालते हैं ये कि हर नोड पे 3 प्रॉपर्टी आती हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन, जो हमारे इंटरेस्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है हर नोड पे। वर्टिकल ये डिफ्लेक्शन दे रहा है, ये रोटेशन ये एक्स रोटेशन ट्विस्टिंग दे रहा है, और वाई रोटेशन हमें फ्लेक्सर दे रहा है। 3 हर नोड पे मिल गए। तो अब क्या करना है, इन्हें ट्रांसलेट करना है डिफ्लेक्शन को हमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में। तो शियर फोर्स ये आ गई, ये अब मेंबर प्रॉपर्टी पे आ गई। मेंबर कनेक्टेड है 2 नोड से, कोई भी मेंबर 2 नोड से कनेक्ट है, तो उस पे हर नोड पे जो प्रॉपर्टी आई उसको लेके हमने मेंबर की प्रॉपर्टी बेंडिंग मोमेंट और शियर निकाल दी। कोई भी डिजाइनर इससे अपनी बीम डिजाइन कर सकता है। यही इस ग्रेलेज का प्रिंसिपल है। आइए अब एक फाइनाइट एलिमेंट मेथड को देखते हैं। ये एक एग्जॉस्टिव मेथड है। इट इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल मेथड विद governing equations are solved on an idealized small element locally. We have seen locally, and the results are then assembled globally by combining all the relevant local behavior. Joints or nodes marked to discretize elements, certain critical locations, displacement, stress are interest. एलिमेंट नोड को कनेक्ट करके ही बनते हैं। बाउंड्री कंडीशन आप कोई भी ले सकते हैं, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, सिंपली सपोर्ट है, रॉकर रोलर है, नाइफ एज तो थ्योरेटिकल है, स्प्रिंग माउंटेड है जैसे बियरिंग, मास, इनर्शिया, लोड्स, ये सब उसका पार्ट है। तो बेसिकली क्या करता है ये, किसी भी एलिमेंट की ith टर्म स्टिफनेस मैट्रिक्स लेता है, उस पी स्टिफनेस के IJ निकालता है, फोर्स डेवलप्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ith डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने देखी, एक एंड पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम है, ग्रिलेज वालों ने 3 ली थी, ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट। स्टिफनेस बेसिकली यूनिट डिस्प्लेसमेंट देने से कितनी फोर्स जनरेट हुई, यही स्टिफनेस है। तो ये 2 डायमेंशनल है KIJ, मतलब लोड किधर लगा है और रिएक्शन कहीं आ रही है, तो इसलिए KIJ 2 डायमेंशनल है। FEM follows principle of conventional analysis. Procedure of formulating Gardner equilibrium is only different. Use of approximate shape function. आपने एक मजेदार चीज देखी, आप किसी भी पॉइंट को पहले डिफॉर्मेशन से डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हमने U1, U2, U3, U4, U5, U6 से चालू किया और अंत में हमने फोर्सेज निकाल लिए। ये यहाँ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक शेप फंक्शन से डिस्प्लेसमेंट उन नोड पे एज्यूम कर लेते हैं, फिर उससे हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन सेटिस्फाई करते हैं। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोड हमने लगाया और जो हमारी कैलकुलेशन से आ रहा है वो मैच होना चाहिए। उस मैच को करने के लिए हमने जो एज्यूम किया था डिस्प्लेसमेंट, वो गलत होगा। पहले आइट्रेशन करके फिर हम एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं जो हमारी लोडिंग को कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस तरह से हम एज्यूम करते हैं डिस्प्लेसमेंट और अल्टीमेटली एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नॉन कंडीशन लोडिंग के लिए निकाल लेते हैं। ये इसका बेसिस है। इन कन्वेंशन एनालिसिस एग्जैक्ट शेप फंक्शंस आर कंसीडर्ड, सो इट इज रेस्ट्रिक्टेड वेयर द शेप फंक्शन आर अवेलेबल। तो शेप फंक्शन हम एज्यूम करते हैं। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आप SAP है, CSI है, STARD है, NISA है, LARSA, डायना, मैनी आर देयर। तो वो FEM वाले क्या कहते हैं, सबसे पहले बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग करो। प्री प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, ज्योमेट्री डिफाइन करेंगे, हर नोड को बताएंगे, और सिर्फ नोड ही काफ़ी नहीं है, उन जब तक नोड को कनेक्ट नहीं करेंगे एलिमेंट नहीं बनेगा।
एलिमेंट बनने के बाद वो ज्योमेट्री बन गई, लेकिन आपको मटेरियल बताना है कौन सा मटेरियल है, फिर आपको बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करनी है, फिर आपको लोडिंग देनी है। ये सारे स्टेप को ही, इसलिए ये कम्प्लेक्स है। तो उसको प्री प्रोसेसिंग है जो ज्योमेट्री, ओरिएंटेशन, इन सबको डिफाइन करता है। फिर एनालिसिस उस इक्वेशन को सॉल्व करता है, आपने जो डिफाइन किया है डिस्प्लेसमेंट डिफॉर्मेशन एज्यूम करके सॉल्व करता है, फिर उसके बेस पे वो जो भी रेस्पॉन्स आपको चाहिए, बेंडिंग मोमेंट, शियर, वो सब निकालता है, उसे पोस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो एलिमेंट क्या होंगे? अभी हमने मान लीजिए बात की है एक सिंपल बार की, से लाइन एलिमेंट की। 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल, लाइक ए ब्रिक, ब्रिक करके भी आप बना सकते हैं। फिर शेल होता है जैसे आर्च, उसका अलग शेप है, स्प्रिंग की अलग शेप है, डिफरेंट वेरिंग प्रिज्मेटिक शेप अलग है, तो उसमें बहुत से रिफाइनमेंट है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप कितना छोटा एलिमेंट को बनाएं। यदि आप एक सर्किल लें, ये पूरा सर्किल है, उसकी ये सेंटर है और ये रेडियस है। इस सर्किल को आप एक इतने टुकड़े करें कि उसका एक एंगल थीटा इस तरह से आए, और आपका एम ये चाप निकालना है, आर्क लेंथ टू बी कैलकुलेटेड। तो आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आप सिंप्लीफाइड करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जी मैंने स्ट्रेट लाइन अंदर पॉइंट को निकाल ली और ये इसके बराबर है, तो कितनी निकाली? मान लीजिए थोड़ी गलती होगी, कितनी हुई निकालते हैं, तो ये कितना हुआ? सिंपली से आर कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई। r cos theta is this one and r sin theta is this one. If it is, say here it is theta by 2, r theta by 2, r cos theta by 2 is this much, r sin theta by 2 is this vertical one. So make it twice r sin theta by 2 is this arc length. It is simplified. ये हमने इतना डिवाइड किया कि ये थीटा एंगल है। अब मान लीजिए थीटा आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री बोले तो इस सर्किल को आपने 4 टुकड़ों में काट दिया, तो आपका एन कितना हुआ? 2 पीस, सॉरी थीटा बाई 2 इज 90, थीटा इज 180। तो आपने एक सर्किल को 2 टुकड़ों में काट दिया, 2 टुकड़ों में काट दिया, और उसका थीटा बाई 2 90 है क्योंकि थीटा 180 है। तो उस केस में ये वैल्यू कितनी आई? आर्च आई, और एक्चुअल आर्च हमको मालूम है पाई टाइम्स डायमीटर पाई डी, तो इससे पाई की वैल्यू निकाल ली, एक नोशनल पाई निकाल लिया, कितना है? दिस डिवाइडेड बाई 2r। तो ये इस यदि हम 2 टुकड़े करके इस सर्किल का लेते हैं तो पाई वैल्यू आती है 2। अब मान लीजिए हमने इसके 4 टुकड़े किए, तो थीटा बाई 2 कितना हुआ? 90 डिग्री का आधा 45, उस केस में ये वैल्यू है 2.83 पाई की नोशनल वैल्यू। ऐसे ही हम ये डिवाइड करते चले, और लास्ट में हमने 8 पीस में हमने देखा ये 3.06 आया, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 है। यदि आप इसके ढेर सारे पॉइंट करेंगे, से 20 डिवाइड कर दें, तो अल्टीमेटली ये 3.14 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया ये डायमेंशन इस आर्च के बराबर पहुंच रही है। तो कितनी गलती हुई? हमारी इंजीनियरिंग में कुछ एजम्पशन अलाउड है। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिंप्लीफाइड को करती है। कंप्यूटर में आप कितने भी डिवाइड करो, अल्टीमेटली हम उसे अचीव कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडरेबल है। बहुत से सॉइल वाले 1.5 लेते हैं, 2 लेते हैं, और जहाँ नॉर्मल स्ट्रक्चर है पहले हम 2 ले लेते थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अब थोड़ी कम हो गई, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आ गए, बहुत सारे हो गए। ये तो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर की हुई। जरा बताइए एयरक्राफ्ट में कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं हम? क्या ले सकते हैं? नहीं, वहाँ कोई फैक्टर सेफ्टी अलाउड नहीं, कोई भी डैमेज है तो ख़त्म सब कुछ। तो इसलिए फैक्टर सेफ्टी सिंप्लीफिकेशन इतना हो जितना हम बियर कर सकें। इसलिए इसके, अब मेरा क्वेश्चन, हम इस सर्किल को कितने पीस में डिवाइड करें ताकि हमारी सिंप्लीफाइड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर आए। यही फाइनाइट एलिमेंट का बेसिस है। फाइनाइट एलिमेंट, हम इतने एलिमेंट बनाते हैं पूरे स्ट्रक्चर के जो फाइनाइट हैं, और इतने हैं कि वो सफिशिएंट हमें उस अप्रोक्सीमेशन को रियलिस्टिक की तरफ ले जाते हैं। हमारा क्या एजम्पशन है? डिफॉर्मेशन वी एज्यूम एट ईच नोड। नोड कहाँ से आया? ज्योमेट्री इज अवेलेबल। तो ज्योमेट्री के बाद फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि ज्योमेट्री नोड अवेलेबल है।
उस पर हमने नोड एज्यूम कर लिया और इक्वेशन ऑफ मोशन सेटिस्फाई कर ली। तो इसमें कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, आइए लेट अस पीप इनटू इट। ये आपका ये जो नीचे की दो लाइनें हैं ये एक बार है, तो इसके एक एंड पे दूसरे एंड पे, नोड 1 पे नोड 2 पे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट u1 है, ठीक है, और ये डायमेंशन x है। तो हमें क्या एज्यूम करनी है, शेप फंक्शन। शेप फंक्शन कैसी हो सकती है, हमने मान लीजिए इस तरह का डिस्प्लेसमेंट लिया, एक एंड पे कुछ है दूसरे एंड पे थोड़ा ज़्यादा है, इक्वल तो कभी होता नहीं आइडियली, तो एक एंड पे थोड़ा इतना है दूसरे एंड पे इतना है, तो ये कितना ग्रेडियंट हुआ हमें यही कैलकुलेट करना है। तो ये कितना होगा, ux इजिकल टू a0 ये वैल्यू है प्लस a1 टाइम्स x। तो बाउंड्री कंडीशन हमें a0 a1 निकालने हैं। आपको याद है y इजिकल टू ये क्या है, y इजिकल टू mx। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, x0 x ये है, x0 पे क्या डिस्प्लेसमेंट u1 और x इजिकल टू l लेंथ पे कितना है u2, ये हमें अवेलेबल है। तो इससे हमने a0 a1 निकाल लिए, a0 u1 आता है और a2 आता है हमारा ये a2 है, a0 u1 a1 डिफरेंस बाई l। अब हम यदि इसको इसमें रख देंगे तो क्या आएगा, u1 प्लस सम वैल्यू और इसको देखो x को एक साथ ले लो, सो u1 टाइम्स समथिंग प्लस u2 टाइम्स समथिंग। ये सारी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, हमें इसमें कुछ छेड़ना नहीं, जो है। हमने क्या एज्यूम किया है, u1 u2 एज्यूम किया है और इस तरह की शेप फंक्शन एज्यूम किया है। तो बेसिकली हमने क्या अचीव किया, हमने अचीव किया कि इससे लेके यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे यदि डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए तो सिंपली इस फॉर्मूले से आ जाएगा, एक शेप फंक्शन टाइम्स u1 हम पे अवेलेबल है जो हमने एज्यूम किया है, और एक u2, तो हम किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लिया, तो आगे क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या लिखा, u1 इज इक्वल टू u मीन्स ux एट एनी पॉइंट, u इज इक्वल टू n1 टाइम्स u1। n1 ये है जिसमें ओनली ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक है, x एट व्हाट डिस्टेंस, l उसकी डायमेंशन एट व्हाट डिस्टेंस। तो इस तरह से n1 इंटू शेप फंक्शन है। सो वी हैव इंट्रोड्यूस शेप फंक्शन और हमने डिस्प्लेसमेंट u1 u2 यदि एज्यूम किए हैं तो उससे फोर्स कैसे निकालना है या एफईएम कैसे निकालता है। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय गेज लेंथ। सो यदि हमारा डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे कितना चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट वो देखें तो ये स्ट्रेन आ गई। हमें यू पता है डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स ही तो निकालना है। इस फिगर में कितना से यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है और कितना चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट, सिंप्लीफाइड कर लिया, ये स्ट्रेन आ गई। अब आप बताओ स्ट्रेन को मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्ट्रेस आ गई। या आप इसी को देखिए ये कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में ला रहे हैं। तो एक शेप फंक्शन आ गया और एक डिस्प्लेसमेंट। शेप फंक्शन में वही है, डायमेंशनल प्रॉपर्टीज है, तो हमारी एक स्ट्रेन आ गई। हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया था उससे एक हमारा स्ट्रेन आ गई, और स्ट्रेन को यदि आप मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो स्ट्रेस आ गई। किसी भी चीज़ पे यदि आपको स्ट्रेस है तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके हमारा फोर्स आ गया। लेकिन फोर्स हमारा बहुत से कॉम्प्लिकेट है, इसलिए हम क्या करते हैं ये समझने के लिए एनर्जी कंसेप्ट लीजिए। तो उसमें क्या है, आपने एक चीज़ नोट की, ये कुछ नोटेशन इंट्रोड्यूस किए हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू सम बी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट फील्ड, सिमिलरली मॉड्यूलो इलास्टिसिटी टाइम्स डिस्प्लेसमेंट फील्ड एंड द शेप फैक्टर। सो दिस इज स्ट्रेस। ये क्या कहता है, यदि आप किसी बॉडी को खींचो तो उसमें जो वर्क डन हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उसे इक्वल कर दो टोटल एनर्जी। क्या एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सारी एनर्जी। तो अल्टीमेटली हमने क्या पाया,
जो भी वेक्टर फोर्स है उससे एक्सटर्नल कॉस करके हमारा एक टर्म आ गई जिसमें हमने देखा हाफ यू डिस्प्लेसमेंट फील्ड, बॉडी फंक्शन, मोडल इलास्टिसिटी, इन सब का मैट्रिक्स का एक कंबाइनेशन आ गया जो हमारा एम है। ये एनर्जी उस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये एक इक्वेशन से हमने अल्टीमेटली क्या निकाला, एक फंक्शन निकाला जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट निकाला और फोर्स। ये हमें हेल्प करेगा क्योंकि फोर्स हमें पता है फाइनाइट एलिमेंट अंदर से कैसे करता है। आप मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर लें और इसमें हमारे ये नोड है, नोड 1, 2 एंड 3, इनको कनेक्ट करते हुए एलिमेंट है 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट जो सर्किल में है। और 1 पे हमारी मान लीजिए अभी हम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं ले रहे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही काम चलाएंगे समझने के लिए। तो इसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। इसकी 2 हैं तो इसकी भी 2 हैं और इसको हमने नाम दिया, इसको दिया पहले नोड 2 है, 3 और 4। 3 ये है एक डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 4, इसकी 5 और एक 6। तो हमने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला सिस्टम लिया जो कनेक्ट नोड लिए, इन नोड को कनेक्ट करके हमने एलिमेंट बनाए और उन एलिमेंट की हमें अब स्टिफनेस निकालनी है। और हमारा ग्लोबल एक्स ये है, ग्लोबल वाई ये है, ग्लोबल जेड उधर है। अभी जेड की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इस एलिमेंट के लिए एक्स ये है और इसका अपना वाई ये है। इसी हम लोकल को ग्लोबल में यहाँ लेके आते हैं, वही ये दिखा रहा है। यदि कोई एक्स वैल्यू इस तरह से है और जो इतने एंगल पे है ग्लोबल से, तो उसको इस प्रॉपर्टी से हम एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो भी ग्लोबल प्रॉपर्टी है वो, जो भी लोकल प्रॉपर्टी है वो ग्लोबल में आ जाएंगी यदि हम इस एंगल से ट्रांसफॉर्म कर दें। क्योंकि हमारे 2 डायमेंशनल है एक्स वाई, तो हमने जेड अभी इग्नोर किया है समझने के लिए। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, हमें एक लैम्डा शेप फंक्शन मिल जाता है जो ज्योमेट्रिक पैरामीटर से रिलेटेड है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, कंप्यूटर निकाल सकता है। अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इस लैम्डा को यूज करेंगे। तो आइए फीड कैसे करते हैं एफईएम में डाटा। एफईएम में डाटा फीड करने के लिए सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग में हम पहले करते थे, ग्राफिकल नहीं था तो हम बाई हैंड उसमें वैल्यू फीड करते थे। तो सबसे पहले वो पूछता है नोडल कोऑर्डिनेट क्या है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट है मान लीजिए, क्योंकि हमारा 2D सिस्टम है, एक्स वाई वैल्यू होगी, जैसे नोड 1, 2, 3। नोड 1 की वैल्यू है से 0, 0, ये ओरिजिन है और एक्स डायरेक्शन में वो इतना चला और वाई डायरेक्शन में 1 है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों वैल्यू है। थर्ड नोड हमारा ये है, उसमें एक्स और वाई थोड़ी है, प्रोबेबिलिटी 0। अब एलिमेंट डिफाइन करता है, वो कहता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मीन्स नोड तो बना दिए, जब तक वो नोड कनेक्ट नहीं है एलिमेंट नहीं बनेगा। तो एक एलिमेंट आपने बनाया, वो किसको कनेक्ट करता है, पहला नोड और दूसरा नोड, पहला नोड और दूसरा नोड, ये हमने डिफाइन कर दिया। तो अब क्या करेगा कंप्यूटर, इससे ज्योमेट्री बना लेगा, नोड बनाएगा, डॉट डॉट डॉट, उनको कनेक्ट करके लाइन बना देगा। अब क्या रह गया, मटेरियल क्या है, वो कहता है ऐसा मटेरियल लीजिए जिसकी मोडुलर इलास्टिसिटी ये है और मास डेंसिटी ये है। तो ये क्या आ गया, कोई मटेरियल आ गया। तो हमने ये मटेरियल यदि अब बता दिया, अब आपको क्या रह गया, ये मटेरियल बताना है किस एलिमेंट में कौन सा मटेरियल है। ठीक है, हमने कहा ये सबको लगा दीजिए। तब क्या रह गया, लोकल स्टिफनेस एलिमेंट की निकालनी रह गई। तो उसके लिए हमने क्या किया, आपको याद है, एक नोड, हमारे 2 नोड है हर एलिमेंट के, और एक नोड पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल कितनी हो गई, 4। लेकिन ग्लोबली हमारी कितनी थी, ग्लोबल थी 6। तो ग्लोबल मैट्रिक्स 6x6 होगी और लोकल 4x4। ये 6x6 में हर एक की 4x4 इंक्लूडेड है। तो कुछ एलिमेंट इस तरह से आएंगे से, यदि कोई ग्लोबल, यदि ये लोकल 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 पहला एलिमेंट, तो वो कहाँ का कनेक्टेड है ग्लोबल से, ग्लोबल के 1 और 2 से और 5 6 से। जो एलिमेंट 1 है,
एलिमेंट वन इज हियर 1 2 and 3 4 और ये वाला एलिमेंट 1 2 and 5 6। तो इसकी लोकल 1 2 3 4 है, लेकिन वो फिर भी 1 2 5 6 ग्लोबल में भेज दी जाएगी। अच्छा, अब दूसरी चीज आई बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन में ये क्या कहता है, वो डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में बताता है कहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट अलाउड है, कहाँ नहीं है। वही बाउंड्री कंडीशन जैसे फिक्स है, तो फिक्स में कोई डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है, तो यही हमें बताना है कि कहाँ अलाउड है और कहाँ अलाउड नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन और नोट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। फिर लोडिंग भी हमारी से ये u1 इज 0, इस पॉइंट पे ये फिक्स है, और दूसरे पॉइंट पे हमें मालूम नहीं, तीसरे पे हमें ये पकड़ा हुआ है, वो भी एक रोलर रॉकर से है। तो उसमें एक आप समझ गए, ये वाली रॉकर है, सॉरी ये वाली रॉकर है जिसमें वो हमें पकड़ा हुआ है, और ये वाली हमारी एक एंड पे फ्री है, मूव कर सकता है एक डायरेक्शन में, दूसरे में नहीं। तो इसमें 3 डिस्प्लेसमेंट 0 हो गए और 3 डिस्प्लेसमेंट आ गए। इसी तरह से ये बाउंड्री कंडीशन आ गई। और यदि हमारा फोर्स इस तरह से लगा है तो किस डिग्री ऑफ फ्रीडम में लगा है, 3 और 4 में। ये वाला 3 और 4 है, तो 3 और 4 में कुछ वैल्यू है जो हमें बतानी है। क्या लगा है, यदि किसी एंगल पे है तो P cos थीटा इज 3 एंड P sin थीटा, क्योंकि ऊपर है इसलिए -P2। तो ये पूरा मैट्रिक्स हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। तो ये क्या करता है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन बना लेगा मैट्रिक्स फॉर्म में, और जिसमें हमें U एज्यूम करना है, फिर मेंबर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, फोर्स निकालना है, और क्योंकि हमने एक डिस्प्लेसमेंट एज्यूम किया है, उन सब से वो कुछ वैल्यूज निकालेगा। तो अल्टीमेटली ये पूरे स्ट्रक्चर की स्टिफनेस निकाल के आपको प्रोसेसिंग से वैल्यू निकाल देता है। तो जब हम एनालाइज करते हैं इतना सिंपल, लेकिन इसमें ढेर सारे पॉइंट हमें देखने होंगे। क्या लेना है, जैसे मैंने बताया स्क्यूनेस, सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन में अलग लोडिंग आती है, कंसीडरेशन और इंटीग्रल ब्रिज में आप जानते हैं कि वो कोई एक्सपेंशन जॉइंट नहीं होता, तो उसकी बाउंड्री कंडीशन एकदम अलग हो गई। मॉडलिंग फोर्स क्रीप एंड के जब प्रीस्ट्रेस लिया तो उसकी मॉडलिंग अलग है, इनफैक्ट हम प्रीस्ट्रेसिंग एलिमेंट भी इसमें लगाते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग सॉलिड स्ट्रक्चर इंटरेक्शन, जब आपने देखा स्ट्रक्चर बहुत डीप जा रहा है और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, से केबल स्टेट ब्रिज और या बहुत हैवी स्ट्रक्चर से 200 मीटर बिल्डिंग, आपको सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन लेना पड़ेगा, जिसमें सॉइल की प्रॉपर्टी लेनी होगी। तो कॉन्टैक्ट और गैप इंफॉर्मेशन, गैप आता है ना, जैसे बियरिंग गैप ही तो है, मतलब सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए एक मटेरियल बीच में लगा दिया, जिसकी प्रॉपर्टी ना कंक्रीट है ना स्टील है। नॉन लीनियर लार्ज डिस्प्लेसमेंट केबल स्टेट ब्रिज है, तो बहुत ज़्यादा नॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट आते हैं। ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, किसने बोला जी ब्लास्ट प्रूफ बनाइए हमारा ब्रिज। नॉन लीनियर डायनेमिक्स आती है, बकलिंग भी हो सकती है, मूविंग लोड अलग प्रॉब्लम है। तो इन सब के लिए हमें स्पेशल केयर करनी है। स्क्यूड नेशन में क्या प्रॉब्लम है कि जो लोड पाथ है, जो स्ट्रेट है लोड पाथ सब जगह इक्वल है। इस केस में ये लोड पाथ इस तरह से आता है कि एंड्स पे फोर्सेज ज़्यादा हो जाए, बस यही उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बॉक्स गटर में एक वार्पिंग होती है। वार्पिंग में क्या है कि एक तरह की लोकल बकलिंग हो जाती है। उससे क्या होगा, उस मान लीजिए आपका ये बॉक्स है, यदि आपने ऐसे लोड लगाया तो सीधे नीचे आ गया, यदि आपने इस तरह से टॉर्शन लगाया तो ये मेंबर्स जो पहले एंगल थे वो रहने चाहिए एक्सेप्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन। प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, ये मेंबर जो थिन मेंबर है दूसरे तरह से बिहेव कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है। So this pattern of connecting these angles are not similar to original. It is not a elastic pattern. Some funny pattern comes out and that creates extra bending moment and torsion at the edges. And that's why box girder needs some attention. So longitudinal warping stress. So यदि warping की वजह से देखो कितनी quantity आई
20 और या 0.5, लेकिन यहाँ 1.1 या 20. So it may be a few percent, but it is important in some cases. Voided slab कैसे लोगे? Voided slab में क्या होता है कि मास बचाने के लिए ये हॉलो कर दिया जाता है. तो हमें क्या देखना है, वीक प्लेन ये है, वीक प्लेन ये है. तो इस वीक प्लेन को ध्यान में रखते हुए हमें इस तरह से उसको एनालाइज करना है. किस तरह से इन्होंने कुछ कंडीशन दी है कि सर्कुलर वॉइड रेशो 0.75D उसकी थिकनेस से कम होनी चाहिए ताकि ट्रांसफर डिस्टॉर्शन ना हो. इस तरह की बहुत सी कंडीशन मिलेंगी आपको जो कोड में अवेलेबल है. और हम कैसे एनालाइज करेंगे, हम मान के चलेंगे ये एक गर्डर है, फिर इस बीच में एक और गर्डर है, तो इट इज़ ए चेन ऑफ मैनी गर्डर्स. एनालिसिस इसलिए भी नहीं चाहिए कि हम किसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है, एनालिसिस और भी कई जगह चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कैलिब्रेटिंग मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड ऑन फील्ड डाटा फॉर एन एग्जिस्टिंग ब्रिज, परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन और मॉडर्न डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन, सब में ये सब चाहिए. दूसरा है कि गेट रेस्पॉन्स फॉर ए सिनेरियो ऑफ लोडिंग ऐसी हुई तो क्या होगा. इन सब के लिए अर्थक्वेक वाले ऐसा करते हैं. फेलियर एनालिसिस, कोई फेल क्यों होता है. फॉरेंसिक एनालिसिस, एक फेल हो गया तो कैसे एनालाइज करें, अब आपको बताना है क्योंकि लीगल प्रॉब्लम्स तो उन्हें तो जवाब चाहिए. तो ऐसी एक केस स्टडी हुई थी जिसमें रेलवे वाले चाहते थे कि हमारा जो रेलवे पे ब्रिज है, पूरे रेलवे लाइन पे हम एक्स्ट्रा लोड बढ़ा दें. तो जो पहले 25 टन के लिए डिज़ाइन था मान लीजिए, अब उस पर 35 टन जाएगा. तो ट्रैक को तो वो चलो स्ट्रेंथन कर लेंगे, उसके एग्रीगेट चेंज कर देंगे, कंपैक्ट कर देंगे, लेकिन ब्रिज कैसे करेंगे, क्या ब्रिज सेफ है एडिशनल लोड के लिए. तो उसके लिए हमने बहुत से स्टडी की. एक मज़ेदार चीज़ क्या थी कि हमें ये पता नहीं लग रहा था कि हमारी बियरिंग्स पे फोर्स कितनी आ रही है, कैसे पता लगाएंगे. तो हमने क्या किया, रॉकर बियरिंग में स्ट्रेन गेज लगा दिए और ये कंप्यूटर से बनाया. कंप्यूटर से हमने एनालाइज किया कितना लोड देने से कहाँ कितना स्ट्रेन आ रही है, और फील्ड में ये स्ट्रेन को मेज़र कर लिया. तो हमने अपने मॉडल को, न्यूमेरिकल कंप्यूटर मॉडल को सिमुलेट कर लिया, वैलिडेट कर लिया, और जितना लोड वहाँ जा रहा था उससे हमने फिर बताया कि हमारा ब्रिज सेफ है अनसेफ है. तो ये उसका FEM मॉडल है बियरिंग का. हम बहुत से उसमें डिस्प्लेसमेंट भी मेजर किया एक्चुअल, और उसमें मटेरियल प्रॉपर्टी और ये सब करके हमने किया. तो उसको हम क्या बोलते हैं कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है. इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम क्या करते हैं कि फील्ड से डाटा लिया, से स्ट्रेन सबसे अच्छा है, फिर उस स्ट्रेन को लिया, फिर FEM से निकाला, उन दोनों को कंपेयर किया. कंपेयर करके हमने यदि कंपेयर ठीक नहीं है तो उसे रिवाइज किया. अपने मॉडल को ही रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि फील्ड डाटा तो एक्चुअल है. और उसके बाद हमने उसे नए लाइव लोड के लिए प्रेडिक्ट किया क्या होगा. ये सिनेरियो है, ऐसा हुआ तो कैसे होगा. तो 112 क्या कहता है, आइए क्विकली देखते हैं. मेरे पास घड़ी नहीं है इसलिए चिंता नहीं करना टाइम की, और लंच में देरी हुई तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं. आपको जब आप कोड देखोगे तो उसमें एक बहुत सारी टर्म है. नॉर्मली, लीनियर, इलास्टिक इज सफिशेंट. इलास्टिक मीन्स इलास्टिक रेंज में जितना लोड लगाया उससे डिफ्लेक्शन हुआ, और जब लोड हटा गया तो डिफ्लेक्शन से वापस आ गए, ये इलास्टिक है. तो इलास्टिक बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ लोड, लाइव लोड. लेकिन अर्थक्वेक आया तो हम अलाउ करते हैं थोड़ा प्लास्टिसिटी आ जाए. थोड़ी प्लास्टिसिटी मतलब थोड़े क्रैक अलाउड है. दूसरा एक कोड कहता है स्ट्रेट एंड टाइम मॉडल. स्ट्रेट एंड टाइम मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं एक केस बताऊंगा. नॉन लीनियर एनालिसिस भी करो सर्टेन कंडीशन में, डायनेमिक लो, कंबाइनेशन लोकल इफेक्ट आ रहा है. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये क्रैक हो गया. आप देख रहे हैं ये एक डीप बीम की तरह बिहेव कर रहा है जो सिंपल बीम से अलग है. वहाँ क्या हुआ दिल्ली में वो अलग बात है, हो सकता है रिइंफोर्समेंट डिटेल सही ना हो, लेकिन एनालिसिस में चाहिए. तो स्ट्रेट टाइम मॉडल जो हमारा IRC 112 कहता है वो इन केस में कम से कम हेल्प करता है. टॉर्शनल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर फॉर्म आपने देखा, ट्रेस, बीम, स्लैब, कॉलम, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, और ये हम सिंप्लीफाई के लिए ले लेते हैं. तो
इफेक्टिव स्पैन कैसे लेना है 112 में IRC 112 बड़ा अच्छा बताता है। ऐसी कंपोजिट गर्डर है, स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या करना है। प्रीस्ट्रेसिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और प्रीस्ट्रेसिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब डॉक्टर राजीव गोयल आएंगे जरा से पूछना प्रीस्ट्रेसिंग की प्रॉब्लम कैसे हैंडल की जाए। लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस आपको लेना पड़ेगा डिज़ाइन में, एनालिसिस में ही लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है। तो प्रीस्ट्रेसिंग के इफेक्ट बहुत सारे हैं। प्रीस्ट्रेसिंग में क्या प्रॉब्लम है? प्रीस्ट्रेसिंग में प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए ये एंड है, वन एंड है, ये एंड पे क्या है, बहुत हाई स्ट्रेस आती है। जैसे जैसे प्रीस्ट्रेस नीचे बीम तक अंदर जाएगा, सेंटर में नॉर्मलाइज स्ट्रेस होती जाएंगी। लेकिन जहाँ इमीडिएट प्रीस्ट्रेसिंग की गई है एंकर्ड पॉइंट पे, वहाँ ज़बरदस्त स्ट्रेसेस आती हैं, और उसके लिए उन्होंने क्या किया है, स्पाइरल का प्रोविज़न किया है। तो एक एनालिसिस्ट को ये ध्यान रखना है और बताना है डिज़ाइनर को, देखो ये आ रहा है। कर्व टेंडन है, कर्व प्रीस्ट्रेसिंग है तो अलग प्रॉब्लम है, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन में फोर्स आ रहा है। अच्छा, हम क्या करते हैं एनालिसिस में, और डिज़ाइनर कुछ और भी लेता है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा, जैसे ये इस सपोर्ट को, बेसिकली सुपरस्ट्रक्चर इज सपोर्टेड ऑन पियर, ये एक वीक लिंक है। कभी कभी क्या होता है फ्लड में, अर्थक्वेक में, यदि हमने पाया कि ये वीक पॉइंट है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, इसे टाई कर दिया। ऐसी टाई अवेलेबल है, शॉक ट्रांसमिशन यूनिट, तो जो शॉक को ट्रांसमिट करके डिस्प्लेसमेंट को लिमिट कर देती है। ये भी हम एनालिसिस में ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या है एनालिसिस का बेसिक क्या है? द एनालिसिस ऑफ ब्रिजेस इज एन आर्ट एंड साइंस। एवरीबॉडी सेज आर्ट, कंवर सिंह भी सुबह बोल रहे थे आर्ट है, which involve incorporating the desired behavior into modeling and appropriate interpretation of results, useful for the stated purpose, for designing rehabilitation में भी बहुत कुछ चाहिए। Thank you. But believe me, you have promised me that you will not ask me for lunch until somebody announce. Okay? Believe me, my lecture starts now. तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप बहुत से डिज़ाइन करते भी होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन वेब हमारे ऑनलाइन में बहुत कुछ अवेलेबल है। Will show some of the powerful tools CSI Bridge offers for the sophisticated modeling and analysis of bridges. The bridge we will model will be a 200-foot long concrete box girder with 2 spans, with a deck 36 feet wide and a depth that varies as a parabola. It will support 2 बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, कोई सा भी ले लीजिए। ये CSI ब्रिज है, बर्कले वालों का प्राइवेट कंपनी है, तो उन्होंने जो बनाया है वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर था। तो उनकी वीडियो आप देखेंगे तो कैसे उसने प्री प्रोसेसिंग, एनालिसिस, पोस्ट प्रोसेसिंग की, ये इंटरेस्टिंग है। और कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार घुसने की बात है। देखिए, यदि आपको तैरना है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा। Spend time and you will achieve. एक बार quickly देख लीजिए। 14 bridges. Lanes and vehicles tension is modeled with shell elements. Lanes of traffic, each 14 feet wide. एक शेप बनाई। It will be pre-stressed in the girders of the columns in a bent cap at midspan. पियर बनाया। Is to use the bridge wizard command. We set the units to kip feet and click on the blank button since we will not be using a template. वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी असाइन कर रहा One option to है। use when developing a bridge model is to use the bridge wizard. And a quick check of the wizard shows that it lists each item and component in the bridge model, along with a description. As you step through the wizard, Simply menu-driven properties हैं, you have to be cautiously allowed. because our model has been generated from a layout line, we will use the same layout line for the lane definition. So no changes will be made. We will
We will change the name to make it easier to identify. Again, we can use a previously defined link. We will add a this तो उन्होंने पूरा 3D स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया. and we बहुत can सारी now see property the दी. analysis. However, before we do button, start seconds. ये डिस्प्लेसमेंट पैटर्न शो किया उसने पोस्ट प्रोसेसिंग में. Start the create video command to plot the trucks moving over the bridge. Make सो सिंपली यू स्पेंड टाइम. मैं थोड़ा सा चेंज होना चाहता हूँ. अब दुनिया बदल रही है. सस्टेनेबिलिटी कितने लोग जानते हैं? मेरे ख्याल से सभी जानते हैं. सिविल इंजीनियर को जानना पड़ेगा क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का एजेंडा है. सस्टेनेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि यदि ये पानी की बोतल जो हमारे सामने रखी है हमारे लिए फ्री है, खैर हम तो एनसीआर दिल्ली से, पानी है हमारे घर में, बहुत सिंपल है, लेकिन ये मिस्टर साहू चल के आए हैं, पानी है, इस पानी की भी कीमत है क्योंकि ये किसी स्ट्रीम से आ रहा है, अंडरग्राउंड से आ रहा है, और इतना हम पानी निकालते हैं, कुछ भी जो भी धरती से निकालते हैं, ऐसा ना हो कि धरती उसे सस्टेन ना कर पाए. तो ह्यूमंस हैव टू चेंज, first understand and change their behavior so that sustainability of earth or the whole system doesn't collapse, and that's the sustainability. And how to make it? Sustainability goals have been defined by the United Nations, which every country follow. So why it is important for us? It is civil infrastructure. So read any of them. Civil engineering infrastructure refer to basic facilities and systems that help society function, including transportation system, communication, water, etc. So that's the civil infrastructure. Civil में what important thing is planning, design, analysis, construction, maintenance, management, infrastructure, and support. Their core. Core means they support the human activities, and it's essential to us. There are many cases, including energy, housing, everything. And there are all, how many goals? 17 goals are there. And where we fit? We fit in a few of them, but one is totally dedicated to us. That is goal 9. Build resilient infrastructure. What is the goal? Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization, and foster innovation. तो इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं. सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर. What they say? Read the last line. Inclusive and sustainable industrialization together with innovation and infrastructure can unleash dynamic and competitive economic forces that generate employment income. They play a key role in introducing and promoting new technologies, facilitating international trade and enabling the efficient use of resources. So they combine all societies. International trade means. So what exactly it is? Invest, so just read blue, light blue, investment in research and development. Well, that was for me. So GDP increased from 1.5% in 2000 to 1% in 15 and others. The coronavirus has shown us that there is need of resilient infrastructure. Economic and Social Survey of Asia and Pacific highlights something, that additional investment of many dollars is required. India, let us come to India. India has made massive strides in creating a mesh of infrastructure through flagship build-out programs in recent years. For most sectors, this has been driven by the public sector or public funding. We are also standing for that. Today, India holds one of the largest brownfield stock of fixed asset of the world. However, while public sector can build infrastructure, it is rarely able to run it efficiently. Well, I'm not saying.
they are saying, United Nations is saying, or sorry, Niti Aayog is saying about SDG. They themselves are admitting we need more to be efficient in management of system. Again, Niti Aayog says it is widely accepted fact that the private sector has much greater resources efficiencies when it comes to developing and managing infrastructure. Increasingly, therefore, government looks to partner with the private sector as a partner. However, for effective co-working between the public and private sector, PPP models are demanding a reboot. This is Niti Aayog view, मेरा नहीं है. India के लिए क्या कहता है? The Indian government has set up a target for make India a 5 trillion economy. The national infrastructure pipeline envisage infrastructure investment of 111 lakh crore over a 5-year period between 20 and 25. So that's massive investment. So CRRA has collected data of failures of bridges in India for last 45 years, starting from 1977 to 2017, then 18 to 21, 22. We have this database, which is copyrighted by CRRA, and what it says, during construction in this period, 40 years, initial 77, there were no credible data, so it is recent that there are more than 100 bridges failed during construction, and most were RCC and PSC because that is the choice of construction, and they are almost 80%. And what are the most failure case? One is scaffolding and others. This is construction, and now let us come to total. What we observed in this 40 years, over 2,000 bridges failed. Failed doesn't mean all collapse. Failed due to some service or something or some defect, whatever it is. So those analyses are given. So what we found that typically 35 years is the age. And the most funny thing is the bridges fail within 5 years. That's very serious matter. So this part is over. Let me come quickly. Don't worry. You will enjoy more food. यदि हम 40 साल का डाटा देखें तो मैक्सिमम रीजन ऑफ फेल्योर in terms of percentage, which remember more than 2,000 bridges failed, is natural hazards. That's why everybody talks of earthquake and flood. Now everybody talk of flood, flash flood, because it is the reason. During construction also, scaffolding, then construction technique, disaster, etc. What really the hazard is? Why I am taking hazard? Because in analysis, loading is critical aspect and hazard define a different type of loading. A hazard is a process. We are discussing natural hazards. Phenomena of human activity that may cause loss of life, injury or other health impacts, property damage, social and economic disruption or environmental degradation. Hazards may be natural, anthropogenic or socio-natural in origin. We limit to our natural hazards. What are those? Wind, seismic loads. Wind includes cyclone, thunderstorm, tornado, hurricane. Normal bridge may not be affected, but cable stayed bridges are there. Floods, that's the maximum dangerous load for bridges. Volcanoes, high temperature, drought, other climate action. After sustainability, it is the climate action, which is very serious in tomorrow. Are you able to see this? No. But I want to show you very interesting thing that average age of failed bridge. In India, it is 35 years. In USA, in various conditions, it ranges up to 58 years. China gave limited data, so don't think it is true. They give 24 years. But typically, it is 40 years like ours.
average, this is I am showing very funny result. Average annual rate of failure of bridges in quantity every year. In India, between this decade, last 10 years, 129 bridges failed every year. And in USA, in the same condition, 128 bridge. We are very close to the damage or failure of bridges in terms of USA almost. Because quantity of bridge in India and US is very close. It is almost 6 lakhs bridges in India and there. And we excluded in this study culverts. Culverts and pedestrian are not included. So you understand how important hazard is? So let me show you one very quickly something interesting. Seismic design has a new code, SP114. Download, study, read, you will find some example, and let us just go through. I'm taking your time to stimulate so that you remember, you recall, and when failed, you read it. They have given one example. Have a look, it's interesting. Now come to the last point, and which I like. Now it starts. There are seismic hazards, there are many things because we have some problem. Our shifting plate itself, this is Japan. This I highlight because they are the best in world, and still a small mistake can lead to collapse of structure. And this is what we say peak ground acceleration. Our code gives something, but in actuality it is different. How it is for critical structure it can be taken care. I'll give you one interesting example. When Reliance factory in Jamnagar was planned, Jamnagar in Gujarat code says you take maximum acceleration of 0.36 G for earthquake. But the designer wanted it to be roughly 0.75, almost double. And there was a fight between Bestel is USA company, and those expert. Expert was director of IIT Delhi that time. So they are proposing 0.75 G acceleration of earthquake. Code says 0.86 G. Bestel, the consultant, was not easily accepting. Then owner came in picture and said, I don't mind money. If expert is saying, accept it. When Bhuj earthquake came, you will be surprised to note that the acceleration recorded was 0.72 G. It was double of. So Jamnagar, a critical facility, was saved due to an analyst oversight, analyst insistence that take proper, and many experts are available which can guide you for critical structures. So even in that, it's very interesting. Even a state of India represent many seismic zones. You know, there are 4 seismic zones, 2 to 5, because seismic 1 is now removed. Previously, Chennai used to be earthquake free. No, they say after tsunami, minimum earthquake forces have to be considered in every structure throughout the country. So there are many aspects. So prevention is better than cure. What really this slide says is that you can analyze an existing structure and it gives data. I'll show you. We have done this in 4 bridges, that how much chances of damage, no damage is this much, slight damage say 30%, say moderate damage say 12%, extensive damage and collapse, there are still 10% chances or 15% chances. This is, and if you know your structure is like this, you will try to retrofit it.
If we retrofit it and do again analysis, those advanced analysis, it says that now chances of no damage are doubled. Increased to 70%, and we have removed collapse. Structure will not collapse after retrofitting. So this is the prevention is better than cure. I just want to laugh. If I know my house has this much weakness and there are even 5% chances of collapse, can I sleep overnight when my children are there? No, I cannot sleep. I'll immediately go put money, whatever I have, and retrofit it. But do we do for bridges or other structures? And that's what analytical approaches are available. Look at it. Failure. This one. This is the first image. Say slightly sinking, more damage, and those spans are totally collapsed. You know, I'm sure journalists बंधु are not there. They will say कॉन्ट्रैक्टर ने सब बेकार कर दिया, सीमेंट अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है. रीजन तो कुछ और है वहाँ. ये कोलैप्स हो गया, देखो ना, एक छोटी सी एक गलती है यहाँ, उसने प्रॉपर केयर नहीं किया. तो स्ट्रेंथनिंग और रिट्रोफिट में क्या है? असेस द वीकनेस इन फोर्सेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मेथड ऑफ रिट्रोफिटिंग यू स्टडी, कंट्रोल डिवाइसेस, मैनी थिंग्स आर देयर, एंड वी कैन इवन असेस. If retrofitting technique 1, retrofitting technique 2, retrofitting technique 3, we can all analyze and say which is lowest cost. There are many methods. आपने कभी देखा आखिरकार मामला क्या है, ये होता क्या है? तो आप एक चीज़ याद कीजिए, स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन करो, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन. इस पॉइंट तक ये इलास्टिक है, जितनी लोडिंग अनलोडिंग करोगे इसी में रहेगा. मामूली सा चेंज स्ट्रेसेस आता है, लेकिन जैसे ही लोड इससे ज़्यादा बढ़ा तो ये इस रेंज में आता है और उससे वापस नहीं जाता है. तो अर्थक्वेक हम इस रेंज में आने की अलाउ करते हैं, इसलिए ये स्टडी किया जाता है. एक और चीज़ है, आखिरकार हमारा ट्रांसवर्स जो रिइंफोर्समेंट है वो करता क्या है, क्या हेल्प करता है? एक कंक्रीट जिसमें कोई कन्फाइनमेंट नहीं, कन्फाइनमेंट उसे चार तरफ से नहीं बांधा हुआ, उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इतना सा है, वो इतनी ही एरिया को कवर कर सकता है, इतना ही फोर्स ले सकता है. यदि हम उसे चार्ट से बांध देते हैं स्टीरअप से तो इतना एरिया उसका बढ़ जाता है, वो इतनी लोड एक्स्ट्रा ले सकता है. इसी को रिट्रोफिटिंग वाले यूज करते हैं. डक्टाइल डिटेलिंग इज कोड. बियरिंग में भी बड़े मजेदार केसेस हैं. परफॉर्मेंस डिजाइन, ये एक बड़ा नया आइटम है जिसे हमें जानना पड़ेगा. तो ये ब्रिज मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या किया. एक दिल्ली में एक फ्लाईओवर है, उसको लिया और अभी आपने देखा नॉन लीनियर बिहेवियर कैसे होता है पूरे स्ट्रक्चर का. जाके पहले इलास्टिक रेंज रहती है, फिर नॉन लीनियर प्लास्टिसिटी आती है, सडन लॉस ऑफ स्टिफनेस हो जाता है, फिर उसके बाद वो गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है. तो उनके लिए कुछ प्लास्टिक रोटेशंस है, कैसे वो से पियर हुआ. तो हमने कुछ एनालिसिस की. हमने एनालिसिस में क्या किया, सॉयल इसके नीचे जितना भी स्प्रिंग है सॉयल है, उसके ऊपर ये पियर है, ये सुपर स्ट्रक्चर है, ये उसका इतने इसमें 4 पियर हैं, उनको कनेक्ट करते हुए पियर कैप है और एक सुपर स्ट्रक्चर है, और इंक्लूडिंग सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन. उसमें क्या होता है कि जब फोर्स लगाते हैं डिफरेंट उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, तो ये कंडीशन आती है. स्लाइड डैमेज की एक कर्व आता है, फ्रेजिलिटी कर्व बोलते हैं हम इसे. फ्रेजिलिटी मतलब कितना स्ट्रक्चर फ्रेजाइल है, वीक है. सीवियर डैमेज और कंप्लीट डैमेज ये सब उसमें आता है. और परफॉर्मेंस पॉइंट ये हम टिपिकली इतना डिस्प्लेसमेंट उस स्ट्रक्चर में अलाउ है तो इसका ये इतना जाएगा. तो हम इस लाइन से बता देते हैं कि कितने चांस कोलैप्स के हैं, कितने नो डैमेज के हैं, इस तरह से हम बता सकते हैं, जैसे ये वर्टिकल लाइन बता रही है. तो अल्टीमेटली क्या निकला,
कोई डैमेज होने के चांस नहीं है, 50%। क्यों ऐसा हो रहा है? अर्थक्वेक की क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है जो हमारे कोड ने डिफाइन किया है, उसी के रेंज में। लेकिन जो सीरियस चीज़ है, मॉडरेट डैमेज के से 20% चांस है, सीवियर और कंप्लीट के ऑलमोस्ट 8% चांस है। सो दैट्स व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वरी, एंड दिस इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। So this whole thing is called risk. How much risk is there? How much risk we accept? So still United Nations define, because they give a common platform. What exactly it is? Risk is defined in terms of 3 values. Hazard, what type of hazard you take, earthquake, flood, whatever you take. Then vulnerability, you have seen your fragility curves, how vulnerable our structure is in that hazard, earthquake, and how many quantity. Say, don't think my bridge is one. Even bridge has many bridges inside because they are a span. Each span is a bridge. So if it is 6-span bridge, there are already 6 structures, and subcomponents are further there. Each behaves separately. Foundation, PR, bearings, superstructure, everything behaves so funny. And that's why it increases complexities. So each of them has, so how many? So what I'm saying is volume is, don't take one bridge, but take whole chain, say Bhopal to Chennai or Bhopal to Delhi. That is the track, that is the transportation network we have to study. Because anything happens in between, one bridge fall, whole network is unserviceable. That's what, how many bridges are there, that shows value. So if you combine all results, that comes out risk. These studies are going on. We will see again. Transportation is a critical. So I am talking transportation. You can talk anything. City. Now you have seen one network, say Delhi to Chennai, Delhi to Bhopal. In this network, please study the risk of my track. You can do, say, n number of bridges, but if somebody says that deciding the whole city, why it is important, say somebody say that this is my people, say students are there, something happened to, say, my school, then they will go to hospital. Between school and hospital, whatever the track is, road network, road corridor is, that must be safe. Or give me risk assessment of that track. Yes, we can do. So that type of track can be done. Some people in US have done for whole city. This red shows highest vulnerability of bridges in that region. Because there is one corridor, road corridor, there is another road corridor, there is connecting one more corridor. So if something happened to this, one can take another route. Yes, it can be done. So if one route is damaged, how much chances are that another route can be accepted? Why I am saying is, analysis can take care all this scenario and give you an idea that my road, city or state networks are vulnerable and how to take care. Thank you. Any question, I am there. Not only here, even CRRI. You have the email. So don't mind asking anything, anytime, and then please enjoy your lunch.